A very good morning to all my dear students. So we have completed the chapter of social inequality, and I told you that we will be discussing some important questions of the chapter. The first one is meaning of the term social exclusion. Obviously the ways in which individuals may become cut off from full involvement in the wider society. जब वो अपने आप को exclude कर लें, अलग रख लें और society का ज़्यादा part ना हो. That means it focuses attention on a broad range of factors जो prevent करता है individuals or groups को from having the opportunities open to the major population. प्रेजुडिस, ये हमने टर्म ऑफनली यूज़ भी की हुई है. दैट इज़ द प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स जो आप एक दूसरे के लिए पहले ही बना लेते हो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे. दैट मीन्स द प्री जजमेंट द ओपिनियन विच यू फॉर्म जस्ट इन एडवांस बिना कुछ जाने. ठीक है. देन देयर वर द डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबल्स आर मोस्ट गो थ्रू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन. जैसे मैंने आपको बताया है पूरे चैप्टर में कि अनटचेबल्स को सबसे लोअर क्लास माना जाता है एंड दे आर जस्ट they are the most extreme form of exclusion which are excluded, who are excluded from the society. छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, ड्रिंकिंग फ्रॉम वाटर, रिलीजियस वर्शिप्स, सोशल सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, हर जगह पे जैसे कहते हैं उनको लोअर ट्रीट किया गया है, लोअर ग्रेड पे ट्रीट किया गया है. सो दैट वाज ह्यूमिलेशन, सबऑर्डिनेशन, जहाँ पे उनको पब्लिकली बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ा. ठीक है, इंसल्टेड होना पड़ा. Then forced inclusion, like compelled to play drums at religious events, although they were not willing for that, but still they were forced to do so. So that was humiliation. ठीक है. और अपने डोमिनेशन दिखाना उन पे, उनको इन्फीरियर फील कराना और ख़ुद को सुपीरियर उनके सामने शो करना. ठीक है. सो दैट वाज द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी जो हमने चैप्टर में क्लियरली बहुत अच्छे से की हैं. Then there was also imposition of gestures of deference such as taking off headgear, carrying footwear in the hand, standing with the bowed head. सिर ऊपर करके नहीं, सिर झुका के खड़े होना है. नॉट वेयरिंग द ब्राइट क्लोथ्स. सो इस तरह से बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और ह्यूमिलेट किया गया था अनटचेबल्स को. Then there was explain the struggles of differently able. Differently able हमने कल ही पढ़ा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, द मीनिंग, उसके फीचर्स. So they were considered as not disabled because they are physically or mentally impaired, but also because society is built in a manner that doesn't cater to their needs. चाहे जितना भी कहा जाए, उनको inferior माना जाता है कि वो capable नहीं है किसी काम के, and they are just dependent upon others. So इंडिया में the labels like disability, handicap, cripple, blind, deaf, they are used synonymously and very oftenly. Right. तो इस जगह पे ऐसी terms use करके लोगों को बहुत बार insult किया गया है. Then there were labels such as bechara or a poor thing, the victims, as if they just have to depend upon each and every other person and they can't do themselves any work. The common perception views disability as retribution of past karma. ये तुम्हारे कर्मों का फल है, that you are disabled. These terms, using these sort of terms जिससे सामने वाले को बहुत बुरा लगे. Then the dominant cultural construction in India, it looks as disability essentially a characteristic of individual. Then they are rendered disabled not because they are biologically disabled but because society renders them so. एक society ने उनको ऐसा बना दिया है, by birth कोई भी ऐसा नहीं है कहीं. Then disability creates and exacerbates poverty by increasing isolation and economic strain not just for the individual but for the family. ऐसी सुन के चीज़ें आइसोलेट कर के उनको, उनके दिमाग पे स्ट्रेन डाला जाता है, उनके दिमाग पे स्ट्रेस डाला जाता है और उनको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि वो एक सोसाइटी पे बर्डन है. दे आर अ बर्डन ऑन द सोसाइटी. दीज आर द व्यूज़ ऑफ आर सोसाइटी, ऑफ आर इंडियन सोसाइटी. ऑल्दो एवरी पर्सन इज़ नॉट द सेम, बट जो उनकी सोच बनी हुई है लोगों को लेकर, डिसेबल पीपल को लेकर, हमारी सोसाइटी की कुछ ऐसी ही सोच है. राइट. सो दीज वर द डिफरेंट स्ट्रगल्स ऑफ डिफरेंटली एबल. तो मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है. अनटचेबल्स की अलग एक कहानी है, उनकी एक अलग स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, और डिफरेंटली एबल्स की अगर हम बात करें, उनकी एक अलग चीज़ रही है. मतलब उनको कहीं ना कहीं दोनों कैटेगरीज़ में ये रियलाइज़ करवाया गया दैट दे आर ऑफ नो यूज़ एंड दे आर जस्ट बर्डन टू द सोसाइटी. जो कि व्यू चेंज करना, ऐसी व्यूज़ बदलना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको बताया, डिवाइडिंग द सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्रैटास, डिविजन बेसिकली. So it's a characteristic of society, not simply a function of individual differences. कई बार ये ज़रूरी भी होता है. ठीक है. Then that
social stratification, society-wide system that unequally distributed social resources among the different categories. हाई क्लास को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी, लो क्लास को कम दे दी, तो वो सब नहीं होना चाहिए. ठीक है, बेसिक नीड सबकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. And with advanced technology, people produce surplus over and above their basic needs, but social resources are unequally distributed. चाहे ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो, लेकिन सोशल रिसोर्सेज अनइक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो ये एक बायसनेस होती है. दैन दे परसिस्ट ओवर जनरेशंस, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये रिसोर्सेज पास होंगे. सो अपॉर्चुनिटीज़ आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम इन द इंडिविजुअल. दलित इज़ लाइकली टू बी कन्फर्म टू ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर, लेबर, लेदर वर्क, और बाकी प्रोफेशनल वर्क ट्रीट किया जाता है. सो मैरिज ऑल्सो इज़ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द मेम्बर्स ऑफ सेम कास्ट. इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती हैं, सो तब स्ट्रैटिफिकेशन. एंड इट्स सपोर्टेड बाय द बिलीफ और आइडियोलॉजी. अगर आप किसी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो, कास्ट सिस्टम, इट्स जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ अपोजिशन ऑफ प्योरिटी पोल्यूशन. ब्राह्मण्स मोस्ट सुपीरियर कास्ट, एंड दलित्स मोस्ट इन्फीरियर. तो ऐसा नहीं है. पीपल विद द ग्रेटर स्पेशल प्रिविलेजेस एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर सिस्टम्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सच एज कास्ट एंड रेस. तो ये आपकी अपनी सोच पे निर्भर करता है. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग. हाउ डू यू थिंक अबाउट द सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. ये नहीं होना चाहिए दैट सम ग्रुप शुड बी ट्रीटेड एज इन्फीरियर, सम ग्रुप शुड बी ट्रीटेड एज सुपीरियर. You are all humans and you are just known by your work, by your hard work. So it should be like that, and this biasness and prejudice system should not be there, should not exist rather in a society. कि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है, ऑक्यूपेशन अच्छी है, तो वो रिच है, तो उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए. नहीं, जनरेशन से जनरेशन पास होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए आपके लिए. सो कहीं ना कहीं स्ट्रैटिफिकेशन करना भी ज़रूरी होता है, बट नॉट इन एवरी केस. सो दिस सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, it should not be like that. So these were the important questions. The assignment has been uploaded. Please go through it. Thank you.